In previous class, we have studied about microsporogenesis. That means development of microspore. Is not it? And where develops the microspore? That means inside the anther. And that microspore, when matured, it converts into pollen grain. Okay. This is the case of male reproductive organ of plants. Okay, which is under the pre-fertilization event. And next one is the development of megaspore. Okay, first of all, where develop the megaspore? I am drawing a diagram. What is this diagram? Give answer, Annesa. What is this? Which diagram is this? Female reproductive part of plant. Female reproductive. Name, which is the name of that organs? Stigma. Stigma. Okay. Pistil. That is the stigma. That is style. Okay. And that is the ovary. Stigma, style and ovary. Okay. तो ये जो तीन पार्ट जो हैं, ये तीन पार्ट को लेकर इसको क्या कहते हैं? पिस्टल. क्या कहते हैं? पिस्टल. ओके. तो व्हाट डू मीन बाय पिस्टल? Pistil means it is the female reproductive organs of plants, which is also known as gynoecium. Okay, reproductive, the female reproductive organ. It is consist of stigma, style, and ovary. Okay. Our topic name is megasporangium and their development. That means we will study about development of megaspore. Okay, where develop the megaspore? Inside the megasporangium. Okay, understood? In case of microsporangium means inside the anther, the spore sac, this is known as microsporangium, where develop the microspore. Same in case of megasporangium, that means where develop the megaspore. Okay, when we study about that topic, we have to know about some special terms. Okay, what do you mean by monocarpellary, carpels? What do you mean by carpels? Okay, the single pistil when present in a flower, that gynoecium consists of a single pistil. Gynoecium, gynoecium. Gynoecium consists of a single pistil. Then that is called the monocarpellary. क्या कहते हैं? Monocarpellary. Mono means one or carpellary. Carpellary. Okay, monocarpellary. Okay, when present only one of gynoeciums, only one of pistil in a gynoecium. Okay, the gynoecium when consists of only one pistil is called monocarpellary. Next is multicarpellary. Multicarpellary. Multicarpellary means when the gynoecium consists of more than one pistil is called multicarpellary. Okay, and next is another term syncarpus. What do you mean by syncarpus ovary? Okay, syncarpus means क्या होते हैं? जब क्या होते हैं ना, पिस्टल्स जो रहते हैं सब फ्यूज रहते हैं, एक दूसरे से जब फ्यूज रहते हैं तब उसको क्या कहते हैं ना, सिनकार्पस. सिनकार्पस और एक टर्म होते हैं एपोकार्पस, जब पिस्टल सब क्या होते हैं फ्रीली अरेंज रहते हैं. ठीक है, फ्रीली अरेंज रहते हैं तब उसको क्या कहते हैं ना, एपोकार्पस. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनकार्पस and multicarpus and multicarpellary and apocarpus?
मल्टीकार्पेलरी, दैट मीन्स क्या होते हैं ना, गाइनोसियम में क्या होते हैं, पिस्टल रहेगा, ठीक है, पिस्टल्स आर प्रेजेंट मोर देन वन, दैट इज कॉल्ड द मल्टीकार्पेलरी, बट at the positions of the pistil in a gynosium, they are united or separated. Okay, when they are present in fused, united एकदम fused present रहते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, syncarpus. When they present in fused together, that is called the syncarpus. Syncarpus. ठीक है, syncarpus. And when present in single freely arranged pistils, multicarpellary, but pistils are present in freely, that is called the apocarpus. Okay, understood? So the stigma, style and ovary, ये सब को लेकर क्या बना है ना, pistil, and that is the terms, different terms. Clear, understood? Monocarpellary, multicarpellary, syncarpus, apocarpus. When you study in higher class during the about morphological structures of plants, then you have to use that type of terms. Flowers are multicarpellary या monocarpellary, syncarpus ovary या apocarpus ovary. ओके, ये सब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ठीक है? ओके, द ओवरी, वेयर प्रेजेंट द ओवरी, तो बेसल पोर्शंस में ओवरी प्रेजेंट रहती है, ठीक है? तो ये जो ओवरी जो रहते हैं, इस ओवरी के अंदर ही क्या बनता है ना, प्लासेंटा, प्लासेंटा बनता है, ठीक है? कहाँ पे बनता है प्लासेंटा? इनसाइड द ओवरी डेवलप द प्लासेंटा. मैच्योर्ड प्लासेंटा is called seed. In previous class, in previous chapters, I told about that. What do you mean by seed and what do you mean by fruits? Okay, matured ovary is called fruit and matured placenta is called seed, placenta. तो ये जो placenta की डेवलपमेंट कैसे होता है, ठीक है, सीड कैसे फॉर्मेशन होता है, जब तक क्या होगा ना, पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होकर एंट्री होकर फर्टिलाइज नहीं होगा, सीड फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है? तो अभी हम लोग को स्टडी करना है ना, ओवरी की टाइप्स कितना है. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ ओवरी इन योर एनसीईआरटी बुक्स. देयर हैव ओनली वन टाइप ऑफ ओवरी. ओके, एक ही टाइप का वहां पे ओवरी दिया है, देखो जो कौन सा है ना, एनाट्रोपस ओवरी, देखो एनसीईआरटी बुक में, ठीक है, एनाट्रोपस ओवरी दिया है. इसके अलावा और भी सब डिफरेंट टाइप्स की ओवरी प्रेजेंट रहते हैं, जैसे क्या क्या है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरी, जैसे सार्सिनोट्रोपस ओवरी, ठीक है, 5-6 टाइप्स ऑफ ओवरी प्रेजेंट इन द प्लांट्स. दैट टाइप ऑफ ओवरी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज. तो टाइप ऑफ ओवरी क्या है ना, नंबर 1 एनाट्रोपस ओवरी, व्हिच इज प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी बुक, ठीक है? एनाट्रोपस ओवरी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनाट्रोपस ओवरी? इन दिस टाइप ऑफ ovules bends along the funicle. What is the funicle? Next, discuss about the funicle, meaning of funicle. So that the micropyle, meaning of micropyle, I will be discussed in next time. Okay, micropyle lies close to the hilum. Hilum, H-I-L-U-M, hilum. Okay, the chalaja lies at the other end. The chalaja lies at the other end. This is the commonest type of ovule found in both in monocot and dicot. It is most important point for your NEET exam. Okay, which type of ovary generally presents in monocot and dicot? That is the anatropous ovary. Okay, anatropous ovary. Anatropous ovary क्या होते हैं, तो डेफिनेशंस क्या हुआ ना, इन दिस ओवरी, एनाट्रोपस ओवरी क्या होते हैं ना, ओव्यूल बेंड्स अलोंग विद द फ्यूनिकल so that the micropyle lies close to the hilum. Okay, the chalaja lies at the other end. This is called the anatropous ovary. Okay, that is called anatropous ovary. Generally presents in monocot and dicot. Both plants, both ovules have anatropous ovary. Okay, and next is orthotropous. क्या क्या है ना, टाइप ऑफ ओवरी, राइट, द टाइप्स ऑफ ओवरी.
which are not mentioned in your NCERT books, but it is very important. Number 1, Anatropus. Number 2, लिखो Arthropus. Ortho, A-R-T-H-O, Orthopus, P-R-O-P-U-S. Orthotropus, T-R-O-P-U-S, ना लिखो Orthotropus. ठीक है, Arthropus ऑब्लिक इसमें क्या होते हैं? सपोज मान लो एक फंक्शन है, अंदर में ये ओव्यूल्स, ये एम्ब्रियो सैक यहाँ पे है, उसके बाहर में एक फुट रहता है जिसको क्या कहते हैं? इंटेगुमेंट. ओके, क्या नाम है? इंटेगुमेंट. और ये जो टर्म, ये जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं ना? माइक्रोपाइल. ये एरिया जो है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल. ठीक है, उसके बाहर में और एक लेयर आ जाते हैं, इसको क्या? आउटर इंटेगुमेंट कहते हैं. ओके, अंडरस्टूड? इंटेगुमेंट. ओके, और ये जो बीच एरिया जो है एरिया, इस एरिया में क्या रहते हैं? फेसी पार्ट रहता है जिसको क्या कहते हैं ना? न्यूसेलस. ओके, न्यूसेलस. ये जो एरिया, इसको क्या कहते हैं? फ्यूनिकल्स. क्या कहते हैं? फ्यूनिकल्स. दिस इज द फ्यूनिकल्स. ओके, in ortho that is the diagram of orthotropous ovule. तो definitions क्या होगा? In this type of ovules, ovule is erect. Erect ovule क्या होते हैं यहाँ पे? Erect भी present रहते हैं. The ovule present in erect ही present रहते हैं. और anatropus में क्या था? ये ऐसा ही है लेकिन वो ऐसे bend हो गया. ठीक है, समझ में आया? देखो बुक्स में दिया है डायग्राम आपके. ठीक है, तो ऑर्थोट्रोपस को क्या कहते हैं? इसीलिए इसको और एक नाम से जाना जाता है जिसका नाम है स्ट्रेट. स्ट्रेट मींस तो इरेक्ट, इरेक्ट मींस सीधा. ठीक है, स्ट्रेट और स्ट्रेट. ठीक है, तो ऑर्थोट्रोपस ओवरी, ऑर्थोट्रोपस ओवरी या स्ट्रेट ओवरी क्या है डेफिनेशन? जैसे आप डायग्राम देखोगे इसी को आपको लिखना है शॉर्टली. वही डेफिनेशन है. क्या डायग्राम में क्या दिख रहा है ना? इन दिस टाइप द ओव्यूल प्रेजेंट्स इरेक्टली सो दैट द फ्यूनिकल चलाजा यहाँ पे रहते हैं. कौन सा? चलाजा. ये जो एरिया इसको क्या कहते हैं? चलाजा. ठीक है, क्या नाम है? चलाजा. CHAL. ठीक है, चला जा. ठीक है, चला जा. ठीक है, चला जा. ठीक है, तो कहा, और ये जो क्या है इसका नाम क्या है ना? माइक्रोपाइल. ओके, ये जो एरिया, दिस इज द माइक्रोपाइल, दिस इज चला जा, दैट इज फ्यूनिकल. ओके, तो हियर इन दिस टाइप ऑफ ओव्यूल्स द फ्यूनिकल, चलाजा एंड माइक्रोपाइल लाई मींस ऐसी अरेंजमेंट. ठीक है, लाई वन एंड द सेम वर्टिकल लाइन, लाई वन एंड सेम वर्टिकल लाइन एज इन मेंबर ऑफ पॉलीगोनेसी फैमिली. पॉलीगोनेसी. ठीक है, या पाइपारेसी. जो पान जो बोलते हैं उसमें भी होते हैं जो फ्रूट्स जो होते हैं, उसका जो ओव्यूल्स जो होते हैं, और ठीक है सॉरी ओवरी जो होते हैं इस टाइप के अरेंजमेंट रहते हैं. तो क्या होते हैं? तो डेफिनेशन ऑफ ऑर्थोट्रोपस ओवरी, जब देखो माइक्रोपाइल, चलाजा और फ्यूनिकल जब क्या स्ट्रेटली अरेंज रहता है. समझ में आया? दिस इज नोन एज ऑर्थोट्रोपस ओवरी. ओके, इज इन वेटिंग रूम रिशु पंडित. ओके, तो that is the orthotropous ovary. Next is hemitropous. Hemitropous ovary. Next is hemitropous. Okay, hemitropous ovary. Next is H-E-M-I. Hemitropous. T-R-O-P-O-U-S. Hemitropous ovary. That is 1, 2 and 3. ठीक है, तो इसमें क्या है? अरेंज्ड क्या है? ये देखो स्ट्रेटली है, ये यहाँ पे अरेंज होगा.
इस टाइप के अरेंजमेंट, ठीक है। थोड़ा सा जो हेयर ड्राई करने के लिए जो देखियो ना, क्या नाम बोलते, हेयर ड्रायर देखियो ना, ऐसा टाइप इसका अरेंजमेंट, समझ में आया। इसको क्या कहते हैं ना, हेमिट्रोपस। तो देखो यहाँ पे बार बार मैं एक ही चीज को पॉइंटिंग नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये फिर हो गया माइक्रोपाइल, ठीक है। इस साइड चला जा लेंथ, ठीक है। यहाँ पे एम्ब्रायो सैक, ये कौन सा, फ्यूनिकल, समझ में आया। ओके, तो ये तो है, यहाँ पे तो इंटेगुमेंट रखनी है, ये जो इंटेगुमेंट, ठीक है। यहाँ पे भी, यहाँ पे क्या है ना, ठीक है, इंटेगुमेंट। तो यहाँ पे देखो अरेंजमेंट क्या हो रहा है, इन दिस टाइप द बॉडी ऑफ द ओव्यूल, दैट इज द ओव्यूल, okay, the body of the ovule is straight but twisted in such a way that it is placed transversely। तो देखो क्यूनिकल्स देखो यहाँ पे है, और इस तरीके से ट्रांसवर्सली वो अरेंज है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक था, इनके साथ इस तरीके से अरेंज है, ठीक है, ट्रांसवर्सली। ओके, तो in such a way that is placed transversely at right angles, is not it, right angle is 90 degree angle में, right angle, okay, right angle to the funicle, that is the funicle, okay, it is called hemitropous oblique। ओके, किसमें देख पाए जाते हैं, बस नाम बस याद रखो, क्या नाम है ना, रैननक्यूलस के जो सब प्लांट फैमिली ग्रुप हैं, रैननक्यूलस में इस टाइप की पाए जाते हैं। एग्जांपल क्या है ना, रैननक्यूलस, ठीक है। नीट एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपकी सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा, बोर्ड एग्जाम में जो एनाट्रोपस ऑब्ली जो है, देखो बुक्स में डायग्राम है, इसलिए मैं फिर यहाँ पे नहीं बना रहा हूँ, बोर्ड में टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो एग्जाम, बोर्ड एग्जाम के लिए एनाट्रोपस वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब ऑब्ली के नाम याद रखो, जरूरी है, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा नॉलेज हो जाने में दिक्कत नहीं है ना। तो क्या है यहाँ पे तीन टाइप की ऑब्ली हो गया, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस एंड हेमिट्रोपस ऑब्ली। ओके, हु इज डिस्कनेक्ट नाउ, नेक्स्ट इज कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस ऑब्ली, ये भी क्या होता है, थोड़ा सा हेमिट्रोपस ऑब्ली जैसे ही है, लेकिन कैम्पाइलोट्रोपस में क्या होते हैं, ये जो ऑब्ली का जो ऐसे जैसे स्ट्रेट में है, ये क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा इनका और मूव हो जाता है, इस तरीके से इसका अरेंजमेंट हो जाता है और डाउन साइड में आ जाता है, ठीक है। ठीक है, ये जैसे स्ट्रेट था, ये थोड़ा सा और डाउन हो जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, सेकेंड, थर्ड हो गया, फोर्थ, फोर्थ जो है क्या नाम है, कैम्पाइलोट्रोपस, सी ए एम पाइलो, पी वाई ए, सॉरी पी वाई ए ओ, कैम्पाइलोट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, TROPOS, कैम्पाइलोट्रोपस, ठीक है, कैम्पाइलोट्रोपस होते हैं। तो ये डेफिनेशन क्या होगा, इन दिस टाइप द ट्रांसवर्स ओव्यूल इज बेंट राउंड लाइक हॉर्स शो, हॉर्स शो देखियो ना, हॉर्स, हॉर्स शो, हॉर्स का जो डाउन में देखो जो ब्लैक कलर की जो रखते हैं ना, देखियो ना हॉर्स में, जिसको बोलते हैं हॉर्स शो, SHOE, ठीक है। तो हॉर्स शो, हॉर्स शो टाइप इसमें क्या हो जाते हैं, इस टाइप की पेंट देख पाए जाते हैं, हर उसको टाइप उसका स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं, शेप हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होते हैं ना, ट्रांसवर्सली प्रेजेंट रहता है, ओके, ट्रांसवर्सली यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, लेकिन क्या होता है, ओव्यूल बेंट लाइक ए हॉर्स शो, ओके, सो दैट द माइक्रोपाइल, ये जो है माइक्रोपाइल देखो कहाँ पे आ गया, थोड़ा सा डाउन साइड में आ गया है, माइक्रोपाइल एंड द चलाजा डू नॉट लाई इन सेम लाइन। तो ये देखो माइक्रोपाइल यहाँ पे है और चलाजा यहाँ पे है, तो उसमें क्या था, ये इसमें स्ट्रेट था, इसमें ट्रांसवर्स में, तो थोड़ा सा मूव हो गया डाउन साइड, ठीक है। तो यार माइक्रोपाइल एंड द चलाजा डू नॉट लाई इन द सेम लाइन, that is called the कैम्पाइलोट्रोपस ऑब्लिक, ठीक है।
कैंपाइलोट्रोपस ऑब्री। इसमें पाए जाते हैं ना मिराबिलिस जलापा, जो इवनिंग टाइम में ये फ्लावरिंग होता है, ठीक है, इवनिंग टाइम में होते हैं, रेड व्हाइट कलर के पाए जाते हैं। मेरा साइंटिफिक नाम क्या है, मिराबिलिस जलापा, ठीक है, या क्रूसीफेरी में पाया जाता है। क्रूसीफेरी मीन्स क्या होते हैं, जो ब्रासिका मास्टर जो होते हैं, ठीक है, उसकी जो ओवरी जो होते हैं, ड्राई ओव्यूल्स जो ओवरी जो होते हैं, ये कैंपाइलोट्रोपस के अंदर पाया जाता है, ठीक है। तो एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरी, ठीक है। नेक्स्ट है और एक टाइप को याद रखो, नेक्स्ट कौन सा है ना, दैट इज द एम्फीट्रोपस। एम्फी मींस बोथ, ठीक है, एम्फीट्रोपस ओवरी। एम्फीट्रोपस में क्या हो जाते हैं, ये और बेंट हो जाते हैं इस तरीके से, मतलब ये यूनिकल और माइक्रोपाइल दोनों को देखो इस तरीके यू टर्म बेंट हो जाता है, ठीक है, यहाँ माइक्रोपाइल और डाउन में आ जाते हैं इस तरीके से, ठीक है, और डाउन हो जाता है। ये जो अरेंजमेंट जो है, और एम्ब्रायो शेप की साइड में क्या जाती है, इसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इस तरीके से इसका एम्ब्रायो शेप की स्ट्रक्चर हो जाता है, ठीक है, जो क्या बोलते हैं ना एम्फीट्रोपस। तो डेफिनेशन क्या होगा, इन दिस टाइप द ओव्यूल इज प्लेस्ड ट्रांसवर्सली एट ए राइट एंगल टू इट्स स्टॉक, ठीक है, टू इट्स स्टॉक। स्टॉक मींस दिस योर फ्यूनिकल्स, ठीक है, एज फाउंड इन एलिस मेसी फैमिली में पाया जाता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ओके, ये 5 टाइप्स ऑफ एम्फीट्रोपस। ओके, एम्फीट्रोपस ओव्यूल। ओके, अच्छा, नेक्स्ट अंजलि पटेल टर्निंग नाउ। ओके, दिस इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओवरी, अंडरस्टूड एवरीबॉडी। तो यहाँ पे देखो हिला कौन सा है, फ्यूनिकल्स कौन सा है, ये चला माइक्रोपाइल मींस कौन से होते हैं ना, पोर वेयर pollen tube enter into the embryo sac, that is called the micropyle, ठीक है, that is the small opening, that is called the micropyle. Opposite side of the micropyle is called chalaza, समझ में आया, opposite side of the micropyle is called chalaza. Okay, nucellus, the fleshy part which cover the embryo sac is called the nucellus. वहां पे क्या रहते हैं ना, फूड मटेरियल्स वहां पे स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। ओके, इंटेगुमेंट, एक इंटेगुमेंट बोलते हैं, इसके जो कवरिंग जो रहती है उसको क्या बोलते हैं, इंटेगुमेंट कहते हैं। ओके, समझ में आया। तो ये सब यहाँ पे टर्म है, हिलम फ्यूनिकल्स, समझ में आया। जो स्टॉक जो है, स्टॉक, ये जो स्टॉक जो है इसको क्या कहते हैं, फ्यूनिकल्स कहते हैं। स्टॉक को क्या कहते हैं, फ्यूनिकल, जो स्टॉक जिससे क्या होती है ओवरी अटैच रहता है, जिसको उसको क्या कहते हैं, फ्यूनिकल कहते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, नेक्स्ट जो है अब मेगा एम्ब्रियो शेप, ये इसको क्या कहते हैं, एम्ब्रियो शेप, वेयर डेवलप द एम्ब्रियो, या प्रेजेंट मेगास्पोर, वेयर प्रेजेंट द मेगास्पोर, दैट इज द एम्ब्रियो शेप, ठीक है, एम्ब्रियो शेप। और फीमेल गैमेटोफाइट्स कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, समझ में आया। इनसाइड द एम्ब्रियो शेप द मेगास्पोरोजेनेसिस, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ megaspores is start. Okay, so today is going to over the time, so in next class we will study next part of development of megaspore, that is the introductory part of the development of megaspore. Okay, then next class we study about the megasporogenesis. Okay, how many times left, last 5 minutes. Okay, so in next class we will detail study about the megasporogenesis. ठीक है, megasporogenesis, where from start the megasporogenesis, that is the some complicated type of systems, not in easy as like microspore. ठीक है, the megaspore firstly start development at the मेगास्पोर मदर सेल्स, ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल्स जो रहते हैं, ठीक है, वहां से क्या होते हैं, वो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, कहां पे, ये जो एरिया है इस एरिया से, ठीक है, यहाँ पे हमको स्टडी करना है। ये जो डेवलपमेंट जो हुआ
मेगास्पोर एंजियम, मेगास्पोर सैक, यहाँ तक हमको स्टार्ट करना है, लेकिन उसके पहले कुछ स्टेप्स रहते हैं, कुछ सेल डिवीजन की प्रोसेस रहता है, ठीक है। तो क्या होती है, द एम्ब्रायो सैक मेंटेन फिजिकल कांटेक्ट विद द पेरेंट स्पोरोफाइट throughout their development. This association of the female gametophyte and the sporophyte provides an opportunity to examine interactions between cell tissue and genomes. Okay, that means यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल टिश्यू एंड जीनोम्स मींस जब क्या होते हैं मेगास्पोर डेवलप हो रहे हैं, वहाँ पे क्या होते हैं उस प्लांट की जीनोम्स टिश्यूज जो सब रहते हैं वहाँ पे रहते हैं, और पोलन ग्रेन्स के थ्रू क्या होते हैं ना कैरेक्टर्स आता है, जब क्या होते हैं फ्यूज होते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रायोस एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है सीड फॉर्मेशन होते हैं। तो हमको यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं डायग्राम में, तो नेक्स्ट क्लास में इसको हम स्टडी करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर? Okay, any questions? Students have any questions? Any query? अच्छा, अंजलि पटेल, unmute you. अंजलि पटेल, unmute audio. Okay, network problem. Network problem.